Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohodki and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर श्री A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतकी। Thank you, Sonu. The headlines: benchmark domestic stocks logged gains more than 2%, Sensex regains 51,000 mark, Nifty reclaims 15,000 level, Rupee appreciates 65 paisa against the US dollar, and global stocks climb amid hopes of US stimulus-supported economic recovery. प्रमुख घरेलू सूचकांक 2% से अधिक बढ़े, सेंसेक्स फिर 51,000 के ऊपर और निफ्टी 15,000 के ऊपर हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 65 पैसे की मजबूती में रहा और अमेरिकी आर्थिक स्टिमुलस से आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिलने की आशाओं के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी। शुरुआत शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी के अनुरूप घरेलू शेयर बाजार 2% से अधिक के उछाल में रहे। सेंसेक्स फिर 51,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा और निफ्टी भी 15,000 के ऊपर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.28% की तेजी से 1,148 अंक बढ़कर 51,445 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.19% की तेजी से 327 अंक बढ़कर 15,246 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में भी तेजी थी, हालांकि तुलनात्मक रूप से ये तेजी कुछ कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.45% की बढ़त पर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.34% की बढ़त दर्ज हुई। The benchmark domestic stocks today climbed more than 2% in sync with gains in the global equity markets. The BSE Sensex regained 51,000 mark while the NSE Nifty reclaimed 15,000 level. The Sensex closed 1,148 points or 2.28% up at 51,445 and the NSE Nifty surged 327 points or 2.19% to finish at 15,246. The broader market at BSE also gained but underperformed the Sensex. The mid-cap index ended 1.45% up while the small-cap index appreciated 1.34%. In the Sensex pack, shares of 27 companies gained while 3 logged losses. Bajaj Finserv was the top gainer as it climbed 5.2%, followed by Reliance and Bajaj Finance, which appreciated 4.5%. ICICI Bank ended 3.5% up, while HDFC, Axis Bank and Infosys gained more than 3%. On the other hand, Maruti, Bajaj Auto and Mahindra fell up to 1.3%. In sectoral indices, 18 out of 19 sectors logged gains. Auto sector was the only loser as it fell 0.6%. Energy sector was the top gainer as it surged 3.7%, followed by metal, which rose 3.2%. Bankex and finance both jumped 2.8%, while basic materials and IT both gained around 2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,844 companies gained, while 1,157 declined. Shares of 170 companies remained unchanged. Mr. Bhattacharya, all in all, third straight session where we saw the stocks rallying, the Sensex rallying. How do you view it after the kind of volatility that was witnessed last week? Well, as you said, this is a third consecutive session when the markets have seen an increase and stayed in the positive territory. I think the developments on a few factors are important that were behind the rally today. On the one hand, the macroeconomic data that have come in the last
few days are all showing a kind of an uptick in the economy and the economic recovery that seems to be a buoyant factor in the market sentiment. That's number one. And the second factor, which has actually played a positive role, is the latest upgrade in the earnings estimate for India's corporate sector. The Indian companies have done very well in the third quarter, but the latest estimates that have come from the various brokerage houses on the kind of earnings that the Indian companies expect in the coming, which is the fourth quarter of the financial year, have also helped bolster this positive sentiment. And the third factor, I think, is also the kind of vaccination drive that has gained a momentum of its own with the vaccination being opened up to the private sector and more relaxations being indicated. So I think it's a combination of both the macroeconomic data and then the earnings upgrade signals from various brokerage houses on India Inc.'s performance and the vaccination drive which is gaining momentum. All these three things, I think, have kept the sentiment up and which is why we have seen the markets going up by as much as 2%. मिस्टर भट्टाचार्य, जैसे आपने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा बहुत उत्साहजनक हैं, जो दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल स्ट्रांग है, जिसमें काफी सारी चीजें हैं. दिसंबर क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव आना, ऑटो सेल्स, जीएसटी. एक जो डेटा पॉइंट आया है उस पर भी हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे. पीएमआई इंडेक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 57.5 आया है फरवरी में और सर्विसेज के लिए भी 55.3 आया है एंड कॉम्पोजिट पीएमआई 57.3 है. सो क्या ये दर्शा रहा है कि शायद ये जो रिकवरी है वो ज्यादा ब्रॉड बेस्ड हो रही है और अब सर्विसेज सेक्टर भी पिकअप कर रहा है? देखिए, अगर पीएमआई को देखें तो पीएमआई का जो 57 के ऊपर रहना ज्यादा कोई इंक्रीज फरवरी में जो नंबर आया था उससे ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा है. पर तभी मैं समझता हूं कि 57 में उसको इंटैक्ट रहना ये दर्शाता है कि जो मार्केट सेंटिमेंट जो है, जो परचेजिंग मैनेजर्स का जो सेंटिमेंट जो है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है और वो काफी ब्रॉड बेस्ड है. और वही चीज का, उसी सेंटिमेंट का प्रतिफलन आप स्टॉक मार्केट में भी आज आपने देखा, जहां पे ऑटो सेक्टर को छोड़कर आपने सारे सेक्टर में मार्केट में उछाल देखा है. तो मैं समझता हूं कि पीएमआई एक बहुत बड़ा एक सूचक है जो कि एक कॉन्फिडेंस का एक को दर्शाता है. और दूसरी ओर अगर आप एक जीएसटी कलेक्शन का भी डेटा को देखें, जीएसटी कलेक्शन का भी डेटा काफी अच्छा दिखा है. फरवरी का महीना सिर्फ 28 दिन का था, पर 28 दिन के डेटा से भी रहकर उन्होंने 7% का वृद्धि देखा है. तो जीएसटी कलेक्शन को भी दिखाता है कि मार्केट ये देख रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की पेस अच्छी बरकरार है. जनवरी की जो 1,13,000 करोड़ नहीं है, पर 1,07,000 करोड़ भी मैं मानता हूं काफी आगे है. तो अगर मार्च का महीना अगर इसी तरह रहेगा, मैं समझता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक जो हम रिकवरी की बात कर रहे थे, वो रिकवरी की जो एस्टीमेट, जो फोरकास्ट हैं, वो इंटैक्ट लगती हैं. हालांकि जो फोर्थ क्वार्टर का जो इकोनॉमिक डेटा आएगा उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप फोर्थ क्वार्टर का डेटा अगर 2019-20 का जो फोर्थ क्वार्टर जो था उसके साथ अगर 2021 का जो फोर्थ क्वार्टर जो है उसका आप अगर एस्टिमेट करेंगे तो आपको शायद एक कंट्रैक्शन फिर से आ जाएगा. पर मैं समझता हूँ वो टेम्पोररी होगा, क्योंकि अगले साल के पहले क्वार्टर से मैं समझता हूँ कि रिकवरी फिर से स्ट्रांग होने की उम्मीद कर सकते हैं. और वो रिकवरी अभी तक जो जैसे हमने देखा वो एक अरिथमेटिक स्टैटिस्टिकल रिकवरी होगी. हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिकवरी हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हम 2022 का पहला क्वार्टर का GDP estimate देखेंगे. Mr. Bhattacharya, you just mentioned that among the various
factors which have impacted the bull run of the markets this week has been one of the factors has been the vaccination drive. But there is also the fact that the infections are rising by the day in India, and there is a fear that these rising infections may impact the market. Like last week, we saw the volatility. So, do you think that's likely to happen, given that the kind of ping pong that has been happening in the market? There are 2-3 things that we must keep in mind that why the market has taken a positive cue from the vaccination drive. One is that while the vaccination drive in India has been one of the best in the whole world, if you compare the vaccination levels in any country apart from the US and UK, India has seen the fastest vaccination drive. Yes. Now that has given a lot of hope. Number 2 is the latest data that has come from the Bharat Biotech Covaxin. Right, which has come out today. Yes. The efficacy data shows that efficacy is around 83%. Now that itself has given a lot of boost. And the third point is that the surge that earlier was feared, which has happened in many other countries, happened when there was no vaccination available. But whereas if the surge takes place in India right now, it will happen in the context of a vaccination drive also being continued apace. Now, therefore, the intensity of a second surge, in my view, will have to be redefined and seen in the context of a vaccination drive that I'm sure will gain momentum. So, therefore, the impact of the surge will probably be neutralized to a great extent because of the vaccination drive, which is why I feel the markets are taking positive cues from the vaccination drive in spite of the fears of a second surge. Mr. Bhattacharya, जो आप बता रहे हैं कि जो अभी सिचुएशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो काफी पहलुओं से स्ट्रांग दिखाई दे रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हों, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस हों, कई डेटा पॉइंट्स जो है वो मजबूती दिखा रहे हैं, जिसको भी एक आधार माना जा रहा है बाजार की मजबूती का। इस बैकड्रॉप में और एक रिकवरी भी हो रही है आफ्टर द कोविड से जो इम्पैक्ट हुआ था इकोनॉमी को। इस बैकड्रॉप में चाइना ने जो कंसर्न जताया है एसेट बबल्स को लेकर, वो आपको भारत के लिए कितना एक कहें कि रेलेवेंट लगता है? क्या आपको ऐसा कुछ डेंजर दिखाई देता है भारत के बाजार में? देखिए, जो एक एसेट बबल, अगर वो एसेट बबल हो, वो हमेशा ही एक चिंता का कारण बन सकता है और बनना चाहिए। पर मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो आपकी जो एसेट प्राइस इंक्रीजेस जो दिखेंगे आपको, उसके अंदर एक अंडरलाइंग एक जो डेटा जो है वो साफ दिख रहा है। एक तरफ आप जो मैंने जैसे कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो पेस पिछले साल इसी समय थी, उससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की पेस बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो डिमांड जो रुकी हुई थी, उसको सडनली वो डिमांड रिलीज हो गई है। और वैक्सीनेशन के बाद एक इकोनॉमी की एक्टिविटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिस्क अवर्शन, रिस्क विमुखता जिसे हम कहेंगे, कि जो रिस्क लेने से हम लोग नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन ड्राइव से जो रिस्क अवर्शन में काफी एक कंट्रोल होगा, और उससे ये तीनों चीजों से मैं समझता हूँ कि एक जो मार्केट का जो एक असेसमेंट जो है वो एसेट प्राइस इन्फ्लेशन जरूर हो रहा है, पर उसको अभी बबल बनना अभी हम नहीं कह सकते हैं इस वक्त। पर जरूर ये बात सच है कि जो भी एक एसेट बबल जब बनता है उसको हमें गौर से देखना चाहिए, और हमेशा सरकार या मार्केट पार्टिसिपेंट्स को चिंता नहीं, ठीक समझ से कॉशियस सावधानी बरतनी चाहिए। Mr. Bhattacharya, if moving on from the stock market, if we look at the broader economy, Sonu just mentioned a little while ago about the service sector, which has expanded at the fastest rate in a year during February. Now, while that is a good news, but there is also the fact that the same survey showed that employment has fallen further. What would you say to that? Is that a worrying point here? I'm glad you have raised this issue, because employment continues to be a worrying factor, because for two reasons.
One is that if employment growth is not maintained while growth is taking place, then obviously one large segment of the economy does not benefit from the positives of any economic uptick. मिस्टर भट्टाचार्य, आपकी आवाज थोड़ी बीच-बीच में हल्की हो रही है. आप अगर थोड़ा सा स्पीकर के पास आ जाएं. जरूर. Thank you. I'm sorry. So what is so therefore the first point is that it is important to realize that increasing employment is an important attribute of an overall economic cycle and a positive growth. And the second important point of employment is that if you do not have continued employment growth and also an increase in the workers' participation rate, which unfortunately is falling, then the demand for the coming months will be adversely impacted. So if demand is not sustained, then it will have a long-term impact on growth. So therefore, employment is a very important variable in any economic growth assessment. So therefore, one has to make sure that the growth is more equitable, not only in terms of the corporate sector doing well in terms of their earnings, but also in terms of the employment rate going up, the unemployment rate coming down, and the labor participation rate going up. If those things happen, then in my view, even the long-term demand of the economy can also be sustained, which will be an important factor in any assessment going forward. And I think in that area, revival of the informal sector will play an important role to generate employment further. Yes, you are absolutely right, because any growth that happens without employment growth can be very inequitable. Right. And it's very important that growth cannot happen. For example, right now what is happening is much of the corporate sector's top line growth is happening, not the top line growth, the bottom line growth is happening at the cost of lower wages. Now this depressed wages and this depressing employment is not a good sign for the economy in the coming months. So therefore, it is important that the benefits of higher earnings are shared with the employees and employment in the wages sector, so that the long-term demand revival does not become a question mark. Mr. Bhattacharya, just before we wind up the discussion on the stock market के अभी के आगे के जो prospects है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि FPI inflows फिर से revive हो गए. आपको लगता है कि अगर US stimulus पैकेज को फाइनल अप्रूवल मिल जाता है और US फेड ने तो ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट है इंटरेस्ट रेट्स को नीचे रखकर या बॉन्ड बाइंग को जारी रखकर वो ऑलरेडी उन्होंने प्लेज किया है. सो यू फील कि ग्लोबल लिक्विडिटी बनी रहेगी एंड जो बुलिश ट्रेंड है हमारे बाजार में वो भी बना रहेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो अमेरिकन मार्केट में, वेस्टर्न मार्केट्स में अभी भी बॉन्ड के मार्केट में काफी एक अनसर्टेनिटी दिख रही है. तो ज्यों ही आप जो बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी बहुत कमी आएगी अमेरिकन मार्केट्स में, मैं समझता हूं कि जो फ्लो जो आ रहा था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का फ्लो, वो फिर से बढ़ जाएगा और वो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित होगा. पर मैं ये समझता हूं कि डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए. उसमें मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इंपॉर्टेंट है, उसमें किस तरह से जो कोविड-19 का मैनेजमेंट हो वो इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किस तरह से इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरह से अगले क्वार्टर्स में परफॉर्म करे. ये तीनों चीज मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा अगली तिमाही की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर. Moving on, the rupee today appreciated 65 paisa against the US dollar to 72 rupees and 72 paisa. The domestic unit rose amid gains in the domestic stocks. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also rose 0.20% to 90.96 in intraday trade. क्या कहेंगे आप, रुपए में जो स्टेबिलिटी है आपको लगता है फिर लौट रही है? क्योंकि पिछले सप्ताह हमने काफी गिरावट देखी रुपए में. देखिए, जो रुपए में जो इस वक्त आपने आज जो स्ट्रेंथ है
देखा आपने, जो वो मुझे लगता है कि जो फ्लो ऑफ फॉरेन मनी जो है वो उसमें जो एक अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ा आस्ते आस्ते दूर हो रही है। और हमारा जो, अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखते हैं, हालांकि हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है करीबन, अगर आप फरवरी का डेटा देखेंगे उसमें हमारा एक्सपोर्ट्स 6% की वृद्धि हुई है, पर हमारा इंपोर्ट जो है वो सिर्फ 3% की वृद्धि हुई है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और भी संकुचित हो गया है, और ये संकोचन से मैं समझता हूं कि डॉलर की डिमांड में एक कमी आई है, और वो रुपए के जो बिहेवियर है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। हालांकि क्रूड ऑयल प्राइस अभी भी एक एलिवेटेड लेवल्स में है, पर मैं समझता हूं कि ओवरऑल डिमांड फॉर डॉलर कम होने से रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आज हमें देखने को मिली। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। चीन के अर्थशास्त्रियों द्वारा शेयर बाजारों में बबल से जुड़ी चिंताओं को दरकिनार करते हुए वैश्विक शेयर बाजारों में आज तेजी दर्ज हुई। ये तेजी इस आशावाद के बीच आई कि अमेरिका में आर्थिक स्टिमुलस बढ़ने से विश्व भर में आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिलेगा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% बढ़ गया और हांगकांग के हैंगसेंग में 2.7% का उछाल आया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.3% की वृद्धि दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.9% की बढ़त पर बंद हुआ और जापान के निक्केई में 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में तेजी का रुख था। लंदन का फुट्सी 1% की वृद्धि पर था। फ्रांस के कैक में 0.7% की बढ़त थी और जर्मनी का डैक्स 0.9% की तेजी पर था। Moving on to the U.S. markets, the Wall Street ended lower yesterday amid profit booking at high valuations before approval of the U.S. Senate to $1.9 billion stimulus package. Following strong gains in the prior session, technology shares dipped in the resumption of a rotation by investors. The Dow Jones Industrial Average fell 0.5%, the S&P 500 declined 0.8%, and the Nasdaq Composite Index plunged 1.7%. मिस्टर भट्टाचार्य, बॉन्ड यील्ड्स का काफी जिक्र रहा पिछले सप्ताह। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आई। आप थोड़ा सा डीकोड करेंगे सरल शब्दों में कि ये बॉन्ड यील्ड क्या है और क्यों ये इतना अफेक्ट करता है एसेट क्लासेस को? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो हमारे जो बॉन्ड मार्केट जो है वो ज्यादा डीप नहीं है, उसमें सरकारी बोरोइंग से काफी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। जब सरकार को जो बोरोइंग बढ़ जाती है, उसमें क्या होता है, जब सरकार की बोरोइंग बढ़ जाती है इसका मतलब जो बॉन्ड पेपर की सप्लाई बढ़ जाती है, उससे जो डिमांड सप्लाई का जो एक मिसमैच होता है, उससे जो बॉन्ड के जो दाम होते हैं, प्राइस जो होते हैं, वो कम हो जाते हैं। और उससे अगर दाम कम हो जाएंगे तो उसी 100 रुपए का जो एक बॉन्ड जो है वो अगर 95 रुपए हो जाए तो उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट 100 रुपए में 5% था वो बढ़कर 6% हो सकता है। तो इसीलिए दाम घटने से जो यील्ड जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब दाम घट जाते हैं, और दाम इसीलिए घटते हैं जब सरकार ज्यादा बोरो करती है तो सप्लाई, बॉन्ड पेपर की सप्लाई बढ़ जाती है, तो डिमांड सप्लाई की मिसमैच से जो दाम घट जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। और इसी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का एनवायरमेंट में भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सरकार की तरफ से सरकार की बोरोइंग को मैनेज करता है, हर वक्त ये देखता है कि किस तरह से वो बोरोइंग के बाद भी जो बॉन्ड मार्केट में यील्ड जो है यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे रहे। अगर नीचे रहे तो सरकार की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो भी कम होती है, और जो ओवरऑल इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है वो भी मॉडरेट रहता है। तो इस वक्त जो हो रहा है कि सरकार की जो बोरोइंग है, जैसे कि 12 लाख करोड़ के बावजूद सरकार ने 80,000 करोड़ का ज्यादा बोरोइंग इस साल ही कर रही है, और अगले साल भी 12 लाख करोड़ का बोरोइंग होगा। इस बोरोइंग के एक प्रभाव से हमारे बॉन्ड मार्केट में एक सप्लाई ज्यादा होने से, डिमांड कम होने से, बॉन्ड प्राइस कम होने से और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से एक थोड़ा बहुत एक टर्बुलेंस हम बॉन्ड मार्केट में देख रहे हैं। पर मैं समझता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर पूरी तरह से नजर अपनी रखे रही है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन से शायद अगले कुछ हफ्तों में यह बॉन्ड मार्केट के यील्ड को कंट्रोल में लाए। क्योंकि अगर बॉन्ड मार्केट के यील्ड
अगर कंट्रोल में न लाएं, मैं समझता हूँ जो बैंकिंग व्यवस्था जो है, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनके पास बहुत सारी बॉन्ड्स हैं, उनकी मार्क टू मार्केट यानी 31 मार्च को उनकी प्राइस के अनुसार उन्हें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अगर दाम कम हो तो उनको बैलेंस शीट में उनका दाम कम होगा, तो उससे उनको घाटा होगा। तो मैं समझता हूँ कि मार्च 31 से पहले ही ऐसा कोई सुझाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाएगी जिसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि बॉन्ड मार्केट में थोड़ी बहुत एक बैलेंस या एक नॉर्मेलिटी वापस आ सके। आइए अब रुक करते हैं कमोडिटीज का। पहले ऑयल है आपके पास अनुभव? Yes, Sonu. So the oil prices today rose with signs of progress in COVID-19 vaccine rollout in the United States amid hope of demand recovery. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $63.70 per barrel, while WTI crude prices were around $60.70 per barrel. Mr. Bhattacharya, oil prices have been somewhat steady this week, and also in India, today was the fourth day where we didn't see a rise in the fuel prices, and this comes just a couple of days ahead of the OPEC Plus meeting, where producers are expected to ease supply curbs. Do you see that as obviously that's a good sign, but do you think that this will have a major impact on the prices here in India? Well, I think that the bigger impact will come if the vaccine rollout and the return to normalcy is assured, because I think the OPEC's decision to curb supplies, they may take a decision to curb supplies, but their decisions are not always fully implemented. So my sense is that the bigger challenge to oil prices remaining moderate will come not from the OPEC decision, but more from the way the economic activity comes back to its earlier pre-COVID levels. And if that happens, in my view, the demand will rise, and therefore the oil prices will remain firm. Indeed, they may even go up a little bit in the coming week. Mr. Bhattacharya, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई रहते हैं जैसा आप कह रहे हैं, मेटल प्राइसेस हाई है, कॉपर प्राइसेस आर एट 9-year हाई, ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन की भी बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि ओवरऑल सिनेरियो में क्या इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न है आने वाले समय में इकोनॉमी के लिए? ये तो साफ जाहिर है कि हमारी जो कमोडिटी साइकिल जो है वो टर्न हो चुकी है। कमोडिटी साइकिल में जैसे आपने डिफरेंट कमोडिटीज की जिक्र की, उस सभी कमोडिटीज में आपने गोल्ड के सिवा सारे बाकी कमोडिटीज में आपने एक इंक्रीज देखा है, और मैं समझता हूँ इन इंक्रीज से जरूर प्राइस मैनेजमेंट एक सरकार के लिए, विश्व के सरकार के लिए और हर देश के सेंट्रल बैंक के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बना रहेगा। बल्कि भारतवर्ष में भी इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को मार्च के आखिर में एक नया इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम लाना है, जिसमें कि 2 से 6% जो टारगेट था वो रहेगा या उनको बदलना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट का चैलेंज संभाले। आइए अब आपने सोने का बात की तो सोने के बता देते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सोने का मूल्य लगभग 500 रुपए गिरकर 45,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी का मूल्य 160 रुपए बढ़कर 67,500 रुपए प्रति किलो था मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,723 प्रति आउंस पर था और चांदी भी मंदी के साथ $26.67 प्रति आउंस पर थी। आपको लगता है कि सोने में ये गिरावट का रुख बना रहेगा? हमारे पास 5 सेकंड है। जब तक अगर इक्विटी मार्केट में तेजी है तो मैं समझता हूँ सोने के और चांदी के मार्केट में उतनी तेजी रहनी नहीं है, क्योंकि जो पैसा बहुत धन्यवाद श्री भट्टाचार्य, समय समाप्त हो गया है। Thank you so much, Mr. Bhattacharya. And before we close, a reminder of headlines. Benchmark domestic stocks log gains more than 2%. Sensex regains 51,000 mark. Nifty reclaims 15,000 level. Rupee appreciates 65 paisa against the US dollar. And global stocks climb amid hopes of US stimulus-supported economic recovery. And with that, it's a goodbye from me and my colleague Sonu Sood. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.